All right. Very good morning, my dear friends. In our previous session, we have just begun the new topic that was obstetrics, and I was discussing regarding the few of terminology related to the obstetrics. Now we were discussing regarding gravida, abortion, stillbirth, preterm, then parity, and then we discussed a small formula for the GTP, AL, and S, that is the stillbirth. Fine. So we have came through this all basic terminology. Remaining there are loads of and there are varieties of terminology which are present in the obstetrics, which we will discuss throughout our these classes, upcoming classes. And today there is a very interesting topic, very important topic, that is the fertilization. So from here onwards, the upcoming sessions will be very interesting. I am damn sure. I always love the obstetrics, teaching the obstetrics compared to my gynecology classes, because it have the varieties of new terminology and many challenging words which are quite important in our future exams, our entrance exams. Alright, so as I requested you guys all even yesterday's classes that you have to be more focused, you have to be more hardworking when you are reading the obstetrics, because the varieties of questions and the weightage जो वजन होगा questions का, that will be more from the obstetrics as compared to the gynecology. So guys, please be focused, read the videos or then go through the videos very carefully. Every topic, every single topic is important in the obstetrics. Fine. So guys, without any late, let's start the topic of fertilization. सबसे पहले, what is the basic meaning of fertilization? What we can understand from the fertilization? What is the result of fertilization? Where it occurs? कहाँ पर होता है मतलब fertilization? Okay, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले fertilization का सिंपल मीनिंग, it is the fusion of female pronuclei and male pronuclei. All right. So what is the word? It is the fusion of female pronuclei and male pronuclei at the fallopian tube. Fine. Very simple meaning. So guys, it is the fusion of female pronuclei and the male pronuclei at the fallopian tube is called as fertilization. और simple meaning like what we have studied, ये थोड़ा सा आपको मैंने एकदम like क्या बोलते हैं classical definition बताया है. Like you can write down in a simple language, that is it is the fusion of sperm and ovum. Very simple. It is the fusion of sperm and ovum. That is also called as fertilization. So स्पर्म और ओवम का फ्यूजन, या जिसको हम कह सकते हैं फीमेल गेमिट एंड मेल गेमिट का फ्यूजन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में. तो हमें वही सब कुछ चीजें आगे आके पढ़ना है. तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग सबके लिए क्लियर हो गया. फाइन. चलिए अब अगला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है? इट टेक्स प्लेस इन दी ampullary isthmus junction. It takes place in the ampullary isthmus junction of fallopian tube, or simply you can remember in the ampulla part of fallopian ट्यूब. देखिए आपको याद रहने के लिए अगर सिंपली सपोज कीजिए याद रखो तो सिंपली याद रख सकते हो. एम्पुला के जो एम्पुला पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जो कि सबसे लंबा पार्ट होता है, लार्ज डायमीटर होता है, लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर होती है, उस एम्पुला पार्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. बट when you wanted to be more specific, अगर आपको क्लासिकल आंसर देना है, that is the classical or most accurate answer,
So the fertilization takes place in the ampullary isthmus junction. Isthmus ampullary जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन के यहां पर क्या होता है, मेनली फर्टिलाइजेशन होता है. ओके. And on what day, which day fertilization takes place? My question was on which day fertilization takes place? Very simple. जिस समय ओवुलेशन होता है उसके इमीडिएट बाद में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है. सो व्हेन इज द ओवुलेशन डे? Ovulation occur on the 14th day. So suppose if the ovulation occurs on the 14th day, very simple, either on the 14th or 15th day क्या होगा, fertilization होगा. Fine. So ampulla के अंदर either on the 14th day or the 15th day there will be fertilization. Fine. That is another word which you must remember regarding the fertilization. Fine. अब चलिए अगले पॉइंट के ऊपर. गाइस एक सिंपल वर्ड है, देखिए लाइक सबसे पहले वर्ड हम लोग शुरुआत से बिगिन करते हैं. लाइक गोनाड्स का मतलब क्या होगा? गोनाड्स का मतलब द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो विच इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल? दैट इज द ओवेरी. सो इन ovaries are the female gonads and testis is the male gonad. This is the male gonad, this is the female gonad. All right. Now what the gonads produce? Gonads produce the gamete. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? They produce the gamete. तो मेल के लिए कौन सा गैमेट होता है? मेल के लिए होता है स्पर्मेटोजोआ, that is the sperm, एंड फीमेल के लिए ओवम. तो मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट होता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, फीमेल के लिए होता है ओवम. ऑल राइट. सो दिस इज द गोनाड्स एंड दीज आर द गैमेट्स. फाइन, क्लियर. नाउ लेट्स गो दैट ओवम की अगर बात आती है. फाइन. ओवम जो होगा, देखिए ओवेरीज दे प्रोड्यूस द ओवम, ओवेरीज दे प्रोड्यूस द ओवम, या आप ऐसे कह सकते हो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis. सो oogenesis का मतलब, जैसे सपोज आप वर्ड याद करते हो ऑर्गेनोजेनेसिस, सिंपली लाइक दैट. अगर सपोज कीजिए हम लोग वर्ड याद करते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मीन्स व्हाट? गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स. दिस इज द गैमेट, दिस इज द गैमेट. सो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेट, either male gamete or female gamete, whatever it is, that is called gametogenesis. Gametogenesis के दो टाइप होते हैं. अगर फीमेल गैमेट बड़ा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम oogenesis कहेंगे. और अगर मेल गैमेट इफ इट इज डेवलपिंग, देन इट इज कॉल्ड एज ए स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. तो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ये दो अलग अलग वर्ड हैं. फाइन. सो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेंगे या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा. oogenesis से क्या होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा. ऑल राइट. अब बात आती है oogenesis की जो टोटल प्रोसेस है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ oogenesis, हाउ मेनी डेज इट टेक्स प्लेस या हाउ मेनी डेज इट टेक्स अराउंड 6 to 8 days. आप एवरेज याद रख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 7 days. फाइन. सो oogenesis में कितना समय लगा? अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 दिन का समय लगा. 6 to 8 days का टाइम लगा, एवरेज 7 days का समय लगता है. स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा वो कहां पर होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस सेमानिफेरस ट्यूबुल्स के यहां पे, जो कि टेस्टिस में होती है. एंड सेमानिफेरस ट्यूबुल्स स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं. ऑल राइट. और इसमें समय लगता है समथिंग अराउंड 62 to 70 days. 62 to 70 days. कई बुक्स में इसको 63 days लिखा हुआ है, कई बुक्स में अप टू 70 days तक भी लिखा हुआ है. तो अप्रोक्सीमेटली 62 to 70 days का टोटल टाइमिंग रिक्वायर होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए. एंड oogenesis टेक्स अराउंड 6 to 8 days. ऑल राइट. ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? दैट इज दी वेरी सिंपल, 12 to 24 hours.
ओवम का लाइफ स्पान कितना बताया मैंने? 12 to 24 आवर्स। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड। 12 से 24 घंटे क्या होता है? ओवम का लाइफ स्पान होता है, मैक्सिमम 24 आवर्स। मतलब अगर सपोज कीजिए एक बार ओवम रिलीज हो गया ओवुलेशन के द्वारा, दिस ओवम हैज टू बी फर्टाइल, दिस ओवम हैज टू बी फर्टाइल विद इन 24 आवर्स, अदरवाइज आफ्टर दैट इट विल बी डीजनरेटेड। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ओवम डीजनरेटेड हो जाएगा। तो मैक्सिमम लाइफ स्पान इज 24 आवर्स। नेक्स्ट वन, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का इसका लाइफ स्पान कितना होगा? इसका लाइफ स्पान कितना होगा? इसका लाइफ स्पान होगा टोटली 48 to 72 आवर्स, मैक्सिमम 3 दिन तक, 72 घंटे। So 48 to 72 hours is the total lifespan of the spermatozoa. Guys, जो sperm होते हैं, sperm can survive in uterine cavity और fallopian cavity. fallopian ट्यूब में या यूट्राइन कैविटी के अंदर 4 to 6 days, मतलब स्पर्म जो है वो यूट्राइन कैविटी में या फेलोपियन ट्यूब में 4 से 6 दिन तक रह सकते हैं। बट पेनिट्रेशन कैपेसिटी इज मैक्सिमम 72 आवर्स। ये देखिए मैक्सिमम, देखिए हमारे लिए यही कहा ना, लाइफ स्पान का मतलब क्या होगा? जो स्पर्म जिसकी ताकत जो है, स्पर्म की क्या ताकत होती है? कैपेसिटेशन की। कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन। कैपेसिटेशन का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था इनफर्टिलिटी के अंदर ये टॉपिक। कैपेसिटेशन का मतलब एबिलिटी टू पेनिट्रेट दी ओवम। स्पर्म का ओवम को पेनिट्रेट कर पाने की जो कैपेसिटी होती है उसके लिए बोला गया है वो मैक्सिमम 48 to 72 आवर्स तक ही होती है। उसके बाद स्पर्म सर्वाइव रह सकता है मैक्सिमम अप टू 6 डेज इन दी यूट्राइन कैविटी और फेलोपियन ट्यूब, बट इट विल नॉट हैव दैट पेनिट्रेशन पावर, सो इट विल नॉट बी यूजफुल, इट विल बी टेराटोजोस्पर्म या प्रॉब्लम। फाइन, सो हमें क्या हमें क्या कहना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो स्पर्म है वो यूटिलाइज हो सकता है, यूजफुल होता है अप टू 72 आवर्स तक। ओके, नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ स्पर्मेटोजोआ? एक मैच्योर स्पर्म की साइज कितनी होती है? द साइज ऑफ ए मैच्योर स्पर्म is around 54 micron. कितना? 54 micron. Sperm is the smallest cell of the body. हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल जो सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज दी स्पर्मेटोजोआ। तो इसकी साइज होती है 54 माइक्रोन। एंड ओवम की साइज क्या होती है? ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसकी साइज होती है अराउंड 130 माइक्रोन, 130 माइक्रोन के आसपास होती है। ऑल राइट, प्लीज याद रखना 130 माइक्रोन इज द साइज ऑफ अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द ओवम एंड 54 माइक्रोन इज द साइज ऑफ ए मैच्योर स्पर्मेटोजोआ. Spermatozoa is the smallest cell of the human body and the ovum is the largest cell of the human body. Fine. So guys, this is the basics. This is the basics related to the fertilization. This is the just initial point of the fertilization. Means before you are going so deep regarding the penetration, procedures, embryology, everything, these basic things we must know. So we should know about the female gonads, where it takes place, what is the lifespan, and what is the size of a ovum. Same thing about the sperm. All right, guys, I just remembered a new word, that is
देखिए एक एंजाइम का नाम मैंने लिखा है वेसिकुलेज एंजाइम. व्हाट वर्ड आई रिटन? वेसिकुलेज एंजाइम. What is the use of, what is the meaning of vesiculase enzyme, where it is present? Guys, vesiculase enzyme, it is present in the semen. Semen में present रहता है ये. कहां पर होता है ये? It is present in the semen. All right. And this vesiculase enzyme का क्या use होता है? It coagulate the सेमेन इन वेजाइना. वेजाइना का पीएच कैसा होता है? एसिडिक पीएच होता है. ऑलराइट. तो जैसे ही जो सेमेन होगा वो मेल पेनिस से सपोज कीजिए अपर वेजाइनल पार्ट में जैसे ही रिलीज हुआ, वहां पे सपोज द सेमेन में जैसे ही सपोज कीजिए लाइक सेमेन वाज रीच्ड इनटू द वेजाइनल कैविटी बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर, दैट वेसिकुलेज एंजाइम वाज एक्टिवेटेड. कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हुआ? वेसिकुलेज एंजाइम वाज गोट एक्टिवेशन एंड it coagulated, it has formed a clot, it have coagulated the semen in the vagina. अब इसने क्या किया? सेमेन को वेजाइना में coagulate कर लिया. तो उससे क्या होगा? So maximum number of sperm can stay at vagina and सर्वाइकल कैनाल. तो जो सर्विक्स एंड वेजाइना के अंदर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो वहां पर स्टे कर सकते हैं, वहां पर रुक सकते हैं. अगर सपोज सेमेन जो है, जो कि सेमेन इज व्हाट? इट इज ए लिक्विड पोर्शन, राइट? ये एक लिक्विड पार्ट होता है. फाइन. बट जैसे ही सपोज कीजिए सेमेन वेजाइना के अंदर रिलीज हुआ, व्हाट विल हैपन? इमीडिएटली जो सेमेन है वो बाहर आउट हो सकता था. इट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द वेजाइना. ओके. बट कंप्लीटली ऐसा नहीं होता. सपोज कीजिए इफ देयर इज 3 ml और 4 ml, इफ सपोज देयर इज 3 ml और 4 ml semen is deposited in the vagina, mostly around 60 to 70% will be coagulated. So what will happen? उस 60 to 70% अमाउंट ऑफ सेमेन में जितने स्पर्म हैं, दे कैन स्टे देयर, वो वहां पर स्टे कर सकते हैं. अदरवाइज अगर ये लिक्विड पोर्शन था, व्हाट विल हैपन? विद द फोर्स ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेविटी के कारण से एंटायर सेमेन कुड बी इजैकुलेटेड आउट और इट कुड बी एक्सपेल्ड आउट. तो क्या होगा? स्पर्म वहां पर स्टे नहीं कर पाते एंड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती. मतलब स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाते ओवम को. तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए वेसिकुलेज एंजाइम ने क्या किया? कोएगुलेट कर दिया. किसको? सेमेन को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेमेन को, सो दैट स्पर्म कैन स्टे एट द वेजाइना एंड इन द सर्वाइकल कैनाल. ओके. गाइस, द ओवम सरफेस, कुछ मैं आपको देखिए अभी जो चीजें बता रहा हूं, लाइक दीज आर द फ्यू टर्म्स एंड फ्यू वर्ड्स विच आर लाइक इंक्लूडेड इन द फर्टिलाइजेशन टॉपिक. ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक में है, बट दीज आर द स्पेशल वर्ड्स. दीज आर द स्पेशल वर्ड्स quite important for us and I think you may never heard in your previous days in the obstetrics. So इसलिए मैं इनको अलग से आपको completely बता रहा हूं. Guys, the ovum, the ovum, इस ओवम के जो आउटर सरफेस होता है, ये जो आउटर सरफेस है, मतलब जोना पेलिसिडा वाला जो एरिया होता है, द आउटर सरफेस ऑफ ओवम contains the protein receptors. These are what? These are the protein receptors. The surface of the ovum contains the protein receptors. जैसे आप ऐसा कह सकते हो, all right, like this you can understand. So on the surface of the ovum, the protein receptors are present. What will happen? Help in the contact of sperm to the ovum and also help in penetration. तो क्या होगा?
ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, रिसेप्टर्स हैं जो कि ओवम के सरफेस पर प्रेजेंट थी, ये स्पर्म को अटैच करती हैं किसके साथ? हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म टू द ओवम। सो कॉन्टेक्ट ऑफ द स्पर्म टू द ओवम, और आप ऐसा कह सकते हो अटैचमेंट of the sperm with the ovum. So what will happen? Basically the spermatogonia, it will come and it will penetrate to the ovum. So penetration करवाने के अंदर ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। प्रोटीन E2, प्रोटीन E3, ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होता है, प्रोटीन E3। Okay, now we are moving forward. Guys, now let's see about the like some of the very basic or very specific things regarding this fertilization. As we discussed, like fertilization takes place in the ampulla या isthmus ampullary junction. It takes place immediately after the ovulation once the ovum reaches to the fallopian tube. Fine. एक स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फ्रॉम द वेजाइना, देखिए वेजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक, वेजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक जो ट्रेवलिंग टाइम होता है, टाइम ऑफ स्पर्म इज जस्ट 30 मिनट्स। सी वेरी स्पेसिफिक हाउ फास्ट दे आर, जस्ट 30 मिनट्स। So starting the traveling time from the upper vaginal part to the fallopian tube, sperm takes only 30 minutes. That's it. So this is the traveling time of the spermatozoa to the fallopian tube. Now let's come on. See guys, millions of sperms are deposited in vagina. Millions, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 10 lakhs are there. So what will happen? So हम यहां पर मैं आपको लिख देता हूं 1 million is equal to 10 lakhs. Fine. So what I told you, the millions of sperms are deposited in the vagina. आप सबको पता है, मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया था, like 1 ml सेमेन, 1 ml सेमेन के अंदर कितने? 20 to 350 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। मिनिमम 20 मिलियन, मैक्सिमम 350 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? 1 ml ऑफ सेमेन के अंदर। तो 1 ml सेमेन के अंदर है, अगर सपोज वेजाइना में तो कम से कम अराउंड 2, 3 और 4 ml तक भी सेमेन जो है वो डिपोजिट किया जाता है। फाइन। सो मिलियंस ऑफ स्पर्म विल रीच टू द वेजाइना। नाउ व्हाट विल हैपन? The semen will be coagulated by vesiculase enzyme. अब इस एंजाइम के बारे में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने अभी जस्ट नाउ डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट इज many sperm die due to high acidic nature of vagina. See what I have written? Many sperm will die due to the high acidic nature of the vagina. वेजाइना के हाई एसिडिक नेचर के कारण बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं, कई मिलियंस के, कई लाखों की संख्या में स्पर्म जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। वेजाइना का पीएच प्रेगनेंसी के अंदर तो इवन दो और ज्यादा एसिडिक होता है। देखिए वेजाइना की पीएच को एसिडिक करने में 2 चीजों का मेन बड़ा रोल होता है, एक तो लैक्टोबैसिलस जो डोडरलिन बैसिलाई हैं उनका, प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन का। और आप सबको पता है प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा होता है, तो क्या होगा? वेजाइना की पीएच भी ज्यादा एसिडिक होगी और उस एसिडिक पीएच के अंदर स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, दे विल बी डाई। नेक्स्ट वन,
the remaining sperm migrate towards सर्वाइकल कैविटी या सर्वाइकल कैनाल, जो भी आप बोलो, मतलब मैं बात कर रहा हूं सर्विक्स की. आई एम टॉकिंग अबाउट दी सर्विक्स. सो व्हाट विल हैपन, द रिमेनिंग स्पर्म विल माइग्रेट टुवर्ड्स दी सर्विक्स. तो जो सेमन बच गए वो किसकी तरफ माइग्रेट कर गए, दे हैव माइग्रेटेड टुवर्ड्स दी सर्विक्स. तो वेजाइना से सर्विक्स के पास चले गई. अब क्या होगा, हियर स्पर्म विल अगेन receive energy by cervical glands. See what I have written here, the sperm will receive again receive the energy by the cervical glands. See guys, the cervical glands, cervix की pH कैसी होती है, cervix का pH जो होता है वो होता है alkaline pH. वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सर्विक्स का पीएच भी एसिडिक होगा. सर्विक्स की पीएच होती है एल्केलाइन. ओके. एंड जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होती हैं, दे रिलीज दी म्यूसिन एंड few amount of fructose. See what I have written, the cervical glands, they basically release the glycoprotein, they basically release the mucin and they release the fructose. So what will happen, the fructose, glycoproteins, इन सबसे क्या होगा, स्पर्म को एनर्जी मिलेगी. स्पर्म विल गेट दी एनर्जी बिकॉज यू नो दैट स्पर्म में माइग्रेशन के लिए, लाइक स्पर्म की मोटिलिटी के लिए क्या जरूरी होता है, एनर्जी जरूरी होता है. ऑल राइट. एंड ये बेसिकली आपको पता होगा, स्पर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए एनर्जी के लिए, एटीपी. व्हेन द माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का ही एक सोर्स है. जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपीज मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, व्हाट विल हैपन, स्पर्म मोटिलिटी विल इंक्रीज. स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मूवमेंट है, वो बढ़ जाता है. मैंने क्या कहा था, स्पर्म को वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में अराउंड 30 मिनट्स का टाइम लगता है. तो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म वेजाइना को क्रॉस करके सर्विक्स पे पहुंचे, इनको इमीडिएटली भोजन मिला, इनको नरिशमेंट मिला. किससे, सर्वाइकल ग्लैंड से. दे गोट द एनर्जी एंड दे हैव जंप्ड टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी. नाउ अब मैं उसी फ्लो चार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं फ्रॉम द डाउनवर्ड्स, जो हमने लास्ट एंड अप किया था. आई एम कंटिन्यूइंग द सेम थिंग. नाउ व्हाट हैपेंस, आफ्टर गेटिंग एनर्जी, फ्रॉम सर्विक्स, कहां से, सर्विक्स से एनर्जी लेने के बाद sperm will enter in uterine cavity. sperm कहां एंटर करेंगे, sperm will enter in the uterine cavity. so जैसे ही यूट्राइन कैविटी में करेंगे, अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, यूट्राइन कैविटी प्रोवाइड्स मोस्ट favorable environment for the sperm. See, sperm को जितना अच्छा एनवायरमेंट हो सकता है एपिडिडाइमिस में और टेस्टिस में नहीं मिला होगा, उससे भी ज्यादा और उससे भी इंटरेस्टिंग मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंट कहां रिसीव होता है, इन दी यूट्राइन कैविटी में.
यूट्राइन केविटी के अंदर इनको सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज यूट्राइन केविटी के अंदर क्यों एनवायरमेंट ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज वार्म। सबसे पहले स्पर्म को ठंड पसंद नहीं है, स्पर्म डोंट लाइक द कूल एज वेदर, एंड एक्सट्रीम हीट भी स्पर्म को पसंद नहीं होता। स्पर्म लाइक द वार्म एनवायरमेंट, जहां पे ये चिल मार सके, इसको एक वार्म एनवायरमेंट की जरूरत होती है। मीनवाइल द स्पर्म के लिए एक तो वार्म एनवायरमेंट है, एंड दूसरा यूट्राइन एंडोमेट्रियम release many nutrients. The uterine endometrium release many nutrients. It release fluid and mucus. See, the uterine endometrium क्या दे रही है स्पर्म के लिए? स्पर्म को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे रही है, फ्लूइड प्रोवाइड कर रही है, म्यूकस रिलीज कर रही है। किसके लिए? स्पर्म के लिए। So uterine endometrium release many nutrients, fluid and mucus, which will be healthy for the sperm. वैसे स्पर्म के लिए कुछ विटामिन भी अच्छे होते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है। याद रखना, ये 3 विटामिन भी स्पर्म के लिए बड़े हेल्दी होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन B12। एक्चुअली ये क्या काम करते हैं, ये जो विटामिन, मेनली विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये they decrease the free radicals in body. Including the semen. Free radicals का मतलब I am talking about the oxidants. मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक जहरीला ऑक्सीडेंट होता है बॉडी के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल कह सकते हो। दे आर डेंजरस, दे आर टॉक्सिक फॉर द बॉडी, दे आर टॉक्सिक फॉर द बॉडी। ऑलराइट, तो फ्री रेडिकल जितने भी होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, OH माइनस है, ये सारे के सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। इनका अमाउंट कम करने के लिए हम क्या देते हैं, हमारी बॉडी को जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे सपोज कीजिए ग्रीन टी, जैसे आप सपोज हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। सिमिलरली विटामिन सी, विटामिन ई, ये बड़े ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो दीज देखिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आप ऐसा कह सकते हो, या एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीबॉडी हमारी बॉडी फॉर्म कर लेती है जो स्पर्म के लिए खतरनाक होते हैं, जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय होते हैं या वो एंटीबॉडीज जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं तो वो रिलीज करते हैं फ्री रेडिकल्स को। तो अब जैसे सपोज कीजिए ये फ्री रेडिकल्स टॉक्सिक होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो अब क्या होगा, इन फ्री रेडिकल्स का या इन टॉक्सिन्स के अमाउंट को कम करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन B12 के रिसोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए। Alright guys, let's come on the topic now back. Okay, so guys, what happens, the uterine endometrium or uterine cavity provides the most favorable environment. The environment will be warm. In that environment there will be lots of fluid, there will be lots of nutrients, there will be glycoproteins, amino acids, alright, and mucus will be there in the, which is healthy for the sperm. ये sperm के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अच्छा होता है sperm के लिए, this is healthy for the sperm. Next one, अब आगे देखिए। Now what happens? Now the uterine ostia aspirate few thousands of sperm in fallopian cavity. गाइज यूट्राइन ओस्टिया सबको पता होगा शायद इस वर्ड के बारे में। आई थिंक मेनी पीपल हैव हर्ड अबाउट दिस। सी यूट्राइन ओस्टिया के बारे में फाइन।
So guys, these openings, see these openings, ये small जो ओपनिंग मैंने जिसको डार्क किया है, गोला बनाया है, मतलब जहां से फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग हो रही है यूट्राइन कैविटी के अंदर, इस एरिया को हम इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड यूट्राइन ओस्टिया। तो जैसे ही सपोज कीजिए स्पर्म माइग्रेट करेंगे, स्पर्म ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे, यूट्राइन ओस्टिया विल सक, यूट्राइन ओस्टिया विल सक, और यूट्राइन ओस्टिया हम कह सकते हैं विल एस्पिरेट द व्हाट? दे विल एस्पिरेट द स्पर्म। ऑलराइट गाइज, तो सारे के सारे स्पर्म तो नहीं जा सकते, बट देयर इज मेनी स्पर्म ओवर द यूट्राइन कैविटी। उनमें से कुछ जो लकी स्पर्म होंगे, द लकी मैजिक स्पर्म, दे विल एंटर इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ यूट्राइन ओस्टिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? with sperm motility and peristaltic movement, with sperm motility and peristaltic movement of fallopian tube, sperm reach up to एम्पुला। मैंने क्या लिखा है? विद द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, विद द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड विद द स्पर्म मोटिलिटी, व्हाट विल हैपन? द स्पर्म विल बी रीच टू द एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से, फैलोपियन ट्यूब के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से एंड खुद स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म के मूवमेंट से व्हाट विल हैपन? स्पर्म विल रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। Okay guys, this was the basic introduction, like how the sperm reach to the fallopian tube. fallopian tube के पास दो एक्शंस होती हैं, दो फंक्शंस होते हैं। एक fallopian tube contains the cilia. So cilia, what happens? Cilia are the small like finger like, not finger like, I'm sorry. Cilia are like small hair like projections या hair like structures which provides movement or migratory movement to the zygote or to the ovum. Meanwhile the cilia also help little bit into the sperm also for the migration, और sperm की motility को बढ़ाने में भी help करते हैं। Second thing, the fallopian tube also contains many smooth muscles. They provide the peristalsis activity to the fallopian tube. So peristalsis movement are also very helpful for the fallopian tube for the migration of sperm, zygote or the mature ovum. Fine. So guys, till now we have discussed that how the sperm, a healthy spermatozoa, from the vagina it reaches to the fallopian tube. All right. This is the basic things. अब हम लोग बात करते हैं. Let's discuss regarding the gametogenesis. अब हम लोग किसकी बात करेंगे? Now we will discuss regarding gametogenesis. So what is the basics of gametogenesis? What is the meaning of gametogenesis? हम इन सब के बारे में बात करेंगे. So fine. Gametogenesis का मतलब what? Gametogenesis का मतलब हमने ऑलरेडी बताया था. It is the formation and development of gametes. Formation and development of gametes. Fine. So this is the basic meaning of the gametogenesis. Gametogenesis में basically दो चीजें आती हैं. Firstly we will discuss regarding the oogenesis. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? Firstly we will discuss regarding the oogenesis. So what is the meaning of oogenesis? क्या मतलब होता है oogenesis का? Oogenesis means what? It is the formation and development of ovum. Oogenesis कहां पर टेक्स प्लेस होता है? Oogenesis takes place in the ovary. It takes place in the
ओवेरी, ये ओवेरी में होता है। ओके, वैसे आप लोग याद रखना ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड अगर कोई फीमेल एम्ब्रियो है तो फीमेल एम्ब्रियो के अंदर female embryo they start producing the female embryo start the gametogenesis या oogenesis by the 6th or 7th week of embryonic period या 7th week of pregnancy। मतलब फीमेल एम्ब्रियो का जैसे 6th और 7th वीक होता है, कौन सा वीक? 6th और 7th वीक होता है जब एम्ब्रियोनिक पीरियड का फीमेल एम्ब्रियो का। फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ the gametogenesis या oogenesis will be begin or it will be started. Fine, this one you must remember regarding the oogenesis. अब guys oogenesis में क्या प्रोसेस होती है, how the oogenesis will take place, let's discuss regarding that. Okay. नाउ लेट्स बिगिन दैट पॉइंट। सी सबसे पहले अगर आप सपोज कीजिए बात करो, इफ यू टॉक अबाउट दी जर्म सेल, विथ जर्म सेल फीमेल जर्म सेल, फ्रॉम द फीमेल जर्म सेल व्हाट विल बी फॉर्म्ड? द oogonia विल बी फॉर्म्ड। ओके, देखिए बेसिकली जैसे सपोज इफ यू गो टू द ओवेरी साइज, अगर आप ओवेरी के ऊपर वापस चलते हो and if you see the ovary you will see from the ovary there is a outer covering edge। ovary के ऊपर एक outer covering edge के रूप में एक small epithelial layer होती है, that is called germinal epithelial layer। the ovary contains the germinal epithelial layer। see the ovary contains germinal epithelial layer। और उसके बाद में ओवरी के अंदर वाले पोर्शन की अगर आप बात करो तो यहां पे क्या होते हैं? हेयर दीज आर दी follicles, these are the many number of follicles which are present in the ovary। fine, so what happens? the germinal epithelial layer of the ovary, the germinal epithelial layer of the ovary that produce the oogonia। आपको याद रखना होगा oogonia या germ cell का प्रोडक्शन कहां पर होता है? the oogonia or germ cells are produced by the germinal epithelial layer of the ovary। germinal epithelial layer of the ovary is responsible for the production of oogonia। now what happens? this oogonia, जैसे ही oogonia का प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, this oogonia will be undertaken। अब देखिए फॉलिकल्स बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, ओवरी कंटेन्स मेनी नंबर ऑफ फॉलिकल्स। फाइन, जैसे सपोज कीजिए फीमेल बेबी, जब कोई फीमेल फीटस अपने मदर के यूट्रस में होता है, कहां पर? व्हेन द फीमेल बेबी इज इनसाइड द यूट्रस, मैटरनल यूट्रस, फीमेल फीटस में कहूंगा उसको, तो उसके 20 वीक पे, फीमेल फीटस के कितने वीक पे? 20 वीक पे अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। 6 to 7 मिलियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन दी ईच ओवरी। हर एक ओवरी में कितने नंबर के फॉलिकल बताए मैंने? 6 to 7 मिलियन ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी। फाइन, अब क्या होगा? इन्हीं ओवरी में से जब कोई बेबी सपोज कीजिए अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में एंटर करता है, कौन सी एज में? चाइल्ड बियरिंग एज में, तो करीबन उस ओवरी के पास 500 डोमिनेटिंग फॉलिकल्स होते हैं। 500 के आसपास कितने क्या होते हैं? डोमिनेटिंग फॉलिकल्स। व्हाट इज द वर्ड डोमिनेटिंग फॉलिकल? ऐसे फॉलिकल जिनके अंदर डोमिनेटिंग पावर है, जो सुप्रीम पावर है उन फॉलिकल्स के पास, हम उनको कहते हैं डोमिनेटिंग फॉलिकल्स। यही फॉलिकल आगे चल के क्या बनेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल कौन से होंगे? दो 500 डोमिनेटिंग फॉलिकल्स हैं, उन्हीं 500 फॉलिकल्स में से ही क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो मैं इनको ओवरऑल ऐसा कह सकता हूं, दीज आर द ओवरऑल नंबर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन ईच ओवरी। फाइन, अब क्या होगा? इन ग्राफियन फॉलिकल में से जो डोमिनेटिंग फॉलिकल जिसका भी पहले नंबर आया, जो भी फॉलिकल है, दिस फॉलिकल दैट ग्राफियन फॉलिकल विल टेक इनसाइड, जैसे सपोज कीजिए दिस जर्मानल एपिथेलियल लेयर, इस लेयर में ये है oogonia, सो इट विल टेक इनसाइड द oogonia। ये क्या काम करता है? तुरंत बाद में जैसे ही oogonia बना, उसके बाद में उस oogonia को अपने अंदर ले लेता है। इट विल जस्ट एनगल्फ द oogonia। अब oogonia किस में अंदर चला गया? इट इज इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में जाने के बाद में क्या पड़ेगा? आप क्या याद रखोगे? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल प्रोवाइड एनर्जी एंड नरिशमेंट
to the developing ovum. तो जैसे सपोज कीजिए सेल डिवीजन वगैरह के लिए, कोशिका विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस के लिए ऊगोनिया को बड़ा होना होता है, ऊगोनिया को आगे चल के ओवम भी बनना पड़ेगा। तो इस ऊगोनिया को बड़ा करना, उसको नरिशमेंट देना, उसको एनर्जी देना, ये सारा काम कौन करता है? ग्राफियन फॉलिकल करवाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। सो दिस इज द बेसिक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इन रिलेटेड टू दी oogenesis, रिलेटेड टू दी oogenesis। एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल की साइज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? एनी आइडिया गाइज? वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दैट वन इवन यस्टरडेज क्लास इन आवर इनफर्टिलिटी टॉपिक। तो आपने ये तो समझ लिया, ये तो कंफर्म हो गया कि oogenesis के अंदर जो जर्म सेल बनती है, मतलब oogonia जो होता है, इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है? जर्माइनल एपिथेलियल लेयर ऑफ दी ओवेरी। तो गाइज एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अप्रोक्सीमेटली साइज होती है 18 to 20 mm, 18 से 20 mm होती है। ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज द oogenesis। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवम इज कॉल्ड oogenesis। सो द जर्म सेल दैट इज द oogonia। अब इस जर्म सेल में क्या होगा? दिस जर्म सेल विल हैव ए सेल डिवीजन। इस जर्म सेल में क्या होगा? द जर्म सेल विल हैव द सेल डिवीजन। विथ सेल डिवीजन द जर्म सेल विल हैव द माइटोसिस। जर्म सेल विल हैव द माइटोसिस, हिंदी में जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। फाइन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन होने के कारण से द oogonia will be converted into primary oocyte। primary oocyte। So what will happen? Suppose कीजिए like the oogonia has been converted into the first cell division हुआ। सबसे पहला सेल डिवीजन था, that is the mitosis। हमेशा ध्यान रखना, जर्म सेल के अंदर, in the germ cell the first cell division is the mitotic division, mitosis। So first cell division क्या हुआ? mitosis हुआ। oogonia contains how many number of chromosomes? It contains 46 number of chromosomes। oogonia में याद रखना कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। माइटोसिस के बाद में ध्यान रखना, माइटोसिस जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल नॉट बी चेंज। सो व्हाट हैपेंस? सेम इन द प्राइमरी oocyte आल्सो कंटेन 46 number of chromosomes। So it also contain the 46 number of chromosome। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ होता है इन दी मियोटिक डिवीजन, नॉट इन द माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस में नहीं होता, वो किसके कारण से होता है? वो मियोसिस के कारण से होता है, जो कि अभी आने वाला है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। फाइन। तो गाइस प्राइमरी oocyte बन गए आप, oogonia किसमें चेंज हो गया? प्राइमरी oocyte में। एंड दिस प्राइमरी oocyte विल बी अरेस्टेड। मैंने क्या लिखा? प्राइमरी oocyte will be arrested till the puberty। ऑल राइट, मतलब क्या होगा? प्यूबर्टी तक, टिल द प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte में कुछ भी नहीं होगा। मीन्स व्हाट? प्राइमरी oocyte जहां पर है वो वहीं पर रुक जाएगा, इसमें फर्दर सेल डिवीजन नहीं होगा। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? टिल द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज मान लीजिए फीमेल में मेनार्की वगैरह जब स्टार्ट होता है, मतलब 13 ईयर के आसपास की एज है, तो टिल द प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte विल बी अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब नो फर्दर सेल डिवीजन। मैंने क्या लिखा? अरेस्टेड का मतलब नो फर्दर सेल डिवीजन, और कोई आगे सेल डिवीजन इसमें नहीं होगा। यह चीज आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द प्राइमरी oocyte। नाउ व्हाट हैपेंस? अब आगे क्या होगा? फिर प्यूबर्टी सपोज अगर स्टार्ट हो भी गई तो अब आगे क्या होगा? लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग दैट। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द डाउन टॉपिक। जो नीचे वाला यहां पर मैंने फिनिश किया है, आई एम जस्ट बिगिनिंग दैट वन, मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। All right, now what happens? After puberty, puberty के बाद में, after puberty, the cell division
will be restarted. क्या होगा? आफ्टर प्यूबर्टी द सेल डिवीजन विल बी रीस्टार्टेड. दोबारा से सेल डिवीजन जो होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है. तो क्या होगा? नाउ जो प्राइमरी oocyte था, इट विल हैव ए अनदर सेल डिवीजन. प्राइमरी oocyte में एक और सेल डिवीजन होगा. कौन सा सेल डिवीजन होगा? फर्स्ट मियोसिस. गाइस प्राइमरी oocyte जो होता है, मैंने कहा था ये यहीं पे बीच में रुक जाता है, ये कंप्लीट नहीं होता. मतलब फर्स्ट मियोसिस कब कंप्लीट होगा? इट विल बी फर्स्ट मियोसिस विल ओनली कंप्लीट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसके बारे में प्लीज नोट कर लेना एवरीबडी एल्स. इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो फर्स्ट मियोसिस विल कंप्लीट only complete after the puberty. जैसे ही प्यूबर्टी कंप्लीट होगा, जो प्राइमरी oocyte था उसमें फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा और इट विल बिकम दी सेकेंडरी oocyte. तो प्राइमरी oocyte से क्या बदल जाएगा? अब सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड. फाइन. फर्स्ट मियोसिस की एक फेज होती है एनाफेज. कौन सी फेज? एनाफेज. तो मियोटिक डिवीजन का जो एनाफेज फेज था उसी में ये क्या हो जाती है? अरेस्टेड हो जाता है. क्या चीज? प्राइमरी oocyte. मतलब वहीं पे एनाफेज पे आके रुक जाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. कंप्लीट कब होगा? इट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर दी प्यूबर्टी. फाइन. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, एनाफेज जो था वहीं पे रुका हुआ था प्राइमरी oocyte. अब इसमें और आगे बढ़ोतरी हुई, ये आगे फॉरवर्ड हुआ. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के कारण अब यहां पे क्या बना? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन नाउ देयर इज अ सेल डिवीजन एंड नाउ देयर आर टू थिंग्स हैपेंड. एक तो इसके कारण क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte. एक तो क्या बना वहां पे? क्या फॉर्मेशन हुआ? देयर वाज ए सेकेंडरी oocyte एंड अनदर थिंग इज फर्स्ट पोलर बॉडी. क्या बना? फर्स्ट पोलर बॉडी. तो गाइस आपने अभी तक क्या पढ़ा? टिल नाउ यू वर डिस्कसिंग दैट इन द oogenesis या इन द oogonia द प्राइमरी oogonia. प्राइमरी oogonia का फॉर्मेशन कहां पर हुआ था? द प्राइमरी oogonia वाज फॉर्म्ड इन द जर्माइनल एपिथेलियल लेयर. प्राइमरी oogonia में एक सेल डिवीजन हुआ जिसका नाम था माइटोसिस. माइटोसिस के कारण से प्राइमरी oogonia वाज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी oocyte जो था वो किसमें चेंज हुआ? सेकेंडरी oocyte में. बट एक प्रॉब्लम थी, प्राइमरी oocyte जो था इसका सेल डिवीजन एनाफेज पे आके रुक गया था. द सेल डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte वाज स्टॉप्ड इन द एनाफेज. कौन सी फेज में? एनाफेज में रुक गया था. व्हाई? बिकॉज द मियोटिक डिवीजन जो आगे प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज करने के लिए जो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है, द मियोटिक डिवीजन, इट विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर दी प्यूबर्टी. सो फर्स्ट मियोसिस वाज ओनली कंप्लीट आफ्टर दी प्यूबर्टी. जैसे ही प्यूबर्टी कंप्लीट हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वाज गोट ओवर. फाइन. नाउ एक चीज आपको याद रखनी है, व्हेनेवर देयर इज ए मियोसिस, व्हाट हैपेंस? व्हेनेवर देयर इज ए माइटोसिस, chromosome number will not be changed, it will be same as it is. So in mitotic division there will be no change in the number of chromosomes, but whenever there is a meiotic division, whenever there is a meiosis, chromosome number will be half, so it will be 23. So number of chromosome will be 23. तो प्राइमरी oocyte में क्या हो रहा था? प्राइमरी oocyte में अभी तक क्या था? देयर वाज ए माइटोटिक डिवीजन, तो इसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे. बट सेकेंडरी oocyte के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? इट विल हैव 23 क्रोमोसोम. बिकॉज प्राइमरी oocyte में अभी तक चल रहा था माइटोटिक डिवीजन, अब प्राइमरी oocyte से हो गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सो क्रोमोसोम्स के नंबर भी हाफ हो गए, एज आई रिटन ऑलरेडी. सो नाउ व्हाट हैपेंस? इट कंटेन्स ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो 23 में 22 क्रोमोसोम्स क्या होंगे? 22 विल बी ऑटोसोम, 22 विल बी ऑटोसोम एंड 1 विल बी दी सेक्स क्रोमोसोम. ऑल राइट. सो 22x कर सकते हो आप. यू कैन राइट डाउन लाइक दिस. एंड फर्स्ट पोलर बॉडी विल ऑल्सो हैव दी 23 क्रोमोसोम. नाउ व्हाट हैपेंस गाइज? जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है इसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होती. देयर विल बी नो फर्दर ग्रोथ. सो देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द फर्स्ट पोलर बॉडी. सो व्हाट हैपेंस? इट विल बी डीजनरेटेड.
ये याद रखना। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट पोलर बॉडी विल बी डीजनरेटेड बिकॉज देयर विल बी नो फर्दर ग्रोथ, बिकॉज फर्स्ट पोलर बॉडी को कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, किसके द्वारा, ग्राफिन फॉलिकल के द्वारा। Okay, now what we have to continue, we just need to continue the primary oocyte, just forget now about the first polar body. All right, so guys, अगर suppose आपको कोई पूछे, if someone asks you first polar body is the result of, first polar body is the result of, ये किसके कारण बनता है, आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए, it is the result of first meiosis। ये किसका रिजल्ट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। Now what happens? Secondary oocyte will have another cell division. इसके पास एक और सेल डिवीजन होगा, कौन से वाला सेल डिवीजन, दैट इज दी सेकेंड मियोसिस। देखिए एक तो फर्स्ट मियोसिस हो गया, प्राइमरी को सेकेंडरी में बदल दिया, अब सेकेंडरी को हमें और ज्यादा आगे बढ़ाना है, तो हमें कौन सा सेल डिवीजन करवाना है, वी आर गोइंग फॉर दी सेकेंड मियोसिस। नाउ व्हाट हैपेंस, द सेकेंड मियोसिस, सेकेंड मियोसिस के बारे में भी आपको एक चीज याद रखनी है, इट विल बी कंप्लीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ fertilization, only at the time of fertilization, till the fertilization it will be arrested, means there will be no further growth in the primary secondary oocyte. So what I mentioned clearly is the second meiotic time, whenever there is a second meiosis, at that time the second meiosis will be arrested। यहां पर भी एक फेज होती है, that is the मेटाफेज। कौन सी फेज में, मेटाफेज के अंदर जाके ये अरेस्टेड हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई एक्सप्लेन यू क्लियरली, इन द फर्स्ट मियोसिस के एक फेज होती है एनाफेज। सो फर्स्ट मियोसिस विल बी अरेस्टेड इन द एनाफेज, it will be stopped there itself. Whenever there is a puberty in the female, the first meiosis will be completed and it will be changed into secondary oocyte and first polar body. First polar body will have no support, there will no support from the graphene follicle, so it will be degenerated, and the secondary oocyte has to go for one more cell division, that is the secondary meiosis. And secondary meiosis also will be arrested, it will not be completed, it will be completed only after the time of, at the time of fertilization. Till the fertilization the secondary meiosis will not be completed. So हम ऐसा कह सकते हैं कि सपोज कीजिए at the time of ovulation, अब fertilization कब होगा, fertilization will only take place in the fallopian tube, not in the ovary itself. So what happens at the time of ovulation, which phase of ovum will be released from the ovary, that is the secondary oocyte. So secondary oocyte जो होता है वो directly वहां से expelled हो जाता है ovary से, and it will reach to the fallopian tube. When sperm penetrates to the ovum, only during that time secondary oocyte will change into the primary nuclei या female pronuclei. So let's see that secondary oocyte क्या हो गया, इसमें क्या चल रहा था, इट वॉज हैविंग द सेकेंड मियोसिस। ओके, एक चीज और याद रखना गाइज मियोसिस के बारे में, मियोसिस इज द सेल डिवीजन विच ओनली टेक्स प्लेस इनटू द जर्म सेल्स। मियोसिस सेल डिवीजन ओनली टेक्स प्लेस इन germ cells, only germ cells they will be the meiotic division. Rest of the body cells, जो हमारी बाकी body cells होती हैं, rest body cells have only one cell division, that is the mitosis. As I told you clearly that in mitosis the number of chromosomes will be always same. If it is 46, there will be 46. But whenever there is a meiotic division which only takes place in the germ cells, the number of chromosomes will be half, that will be 23 chromosomes. In the mitosis, in our local language we usually call it a samsutri vivajan, and meiosis you call it a ardhasutri. Ardhasutri means half number of chromosomes. All right, now let's come back to the point. So guys, secondary oocyte, हम बात कर रहे थे secondary oocyte की, उधर first polar body तो degenerate हो गया था, secondary oocyte will have another cell division, that is the second meiosis.
और मैंने कहा था सेकेंड मियोसिस की जो फेज होती है, कौन सी फेज? मेटाफेज, वहीं पे जाके ये अरेस्टेड हो जाता है। अरेस्टेड का मतलब ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। कंप्लीट कब होगा? इट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो द सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस कब कंप्लीट होगा? अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में सेकेंड मियोसिस, ओनली आफ्टर दी sperm penetration. Whenever there is a magic touch of sperm, whenever there is a magic touch of the sperm, the fertilization will happen and the second meiosis will be completed. So what happens? सेकेंडरी oocyte हो गया। अब ये वर्ड आपको रट लेना है, सेकेंडरी oocyte का क्या हो गया? ओवुलेशन हो गया। So I'm just again highlighting it. So there is a secondary oocyte. What happens? Ovulation takes place on which day? You can remember approximately on 14th day. Not as a guarantee to that every female will have on the 14th day. So ovulation takes place on the 14th day. Now what happens? The ovum will reach, या आप ऐसा कह सकते हो, it is a immature ovum. It is a immature ovum. It will come to the fallopian tube, and fallopian tube will have the sperm. Sperm will penetrate the ovum, and now what happens? जैसे ही sperm उसको penetrate करेगा ovum को, secondary meiosis will complete. The second meiosis will be completed. अब जैसे ही second meiosis वहां पर complete हुआ, what you will call that structure? So when there is a second meiosis completed, there are two structures happen. Because of the second meiosis, two structures were formed. एक structure का नाम था female pronuclei and दूसरा था second polar body. So आपको कोई पूछे एग्जाम में, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है? Second polar body is only formed after the fertilization. Second polar body is only occurs after the fertilization, not before the fertilization. या if someone asks you कि एक mature ovum कब बनता है, that also happen only after the fertilization. Why? Because second meiosis जो होगा, it will only completed after the fertilization, the magic touch of the sperm, जिसको मैंने यहाँ पर word भी mention किया है, fallopian tube. It reaches and by the contact with the sperm, the second meiosis will be completed. जैसे ही second meiosis complete होगा, एक तो structure बनेगी female pronuclei. All right, and next is the second polar body. Guys, female pronuclei also contains 23 chromosomes and secondary polar body contains same 23 chromosomes. When the sperm come in the contact with this same female pronuclei, 23 plus sperm के 23 जो होंगे, there will be 46 chromosomes. All right. Now what happens? The second body, second polar body, it will be again expelled out from ova, or you can say it is degenerated. It will be degenerated. And what happens to the second polar female pronuclei? It is a mature ovum. Fine. तो ये था रिगार्डिंग दी oogenesis प्रोसेस, और द गेमेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट स्टेज था, दैट वाज द oogenesis. So guys, overall regarding the oogenesis, what we have discussed three cell divisions. One was the mitosis, and there was two stages of the meiosis. First meiosis, second meiosis. What we discussed, सबसे पहले मैंने आपको बताया जर्म सेल. मैंने क्या बताया था आपको? जर्म सेल. जर्म सेल का मतलब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? आई एम टॉकिंग अबाउट दी oogonia. oogonia का फॉर्मेशन कहां पर होता है? oogonia takes place at the germinal epithelial layer, the outermost layer of the ovary. ओवरी का सबसे बाहर का लेयर होता है oogonia, that contains the germinal epithelial layer, जो सबसे outer layer होता है, that contains the oogonia. Whenever there is a oogonia, it have only one first, no, there is no first word, only have mitosis, the cell division. So what happens with the cell division? It will be first, या आप ऐसा कह सकते हो primary oocyte.
हमने डिस्कस किया था पहले इसके बारे में। तो क्या बन गया माइटोसिस के कारण? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद में इसमें अनदर सेल डिवीजन जो होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब प्राइमरी oocyte में क्या होना चाहिए था? प्राइमरी oocyte शुड हैव ए मियोसिस। देखिए, एक माइटोसिस और 2 मियोसिस, तो फर्स्ट मियोसिस इट इज ओके, बट एक कंडीशन है यहां पे, प्राइमरी oocyte में आगे मियोसिस नहीं होगा। वाई? इट हैज टू वेट अंटिल द प्यूबर्टी। किसका वेट करना पड़ेगा? प्यूबर्टी का। टिल द प्यूबर्टी देयर इज नो फर्दर सेल डिवीजन। Whenever there is a completion of the puberty, a starting of the puberty, approximately somewhere around the age of 13 or 14 in female, fine. So whenever there is a puberty, first meiotic division will be completed and primary oocyte will change into secondary oocyte. मैंने आपको कहा था secondary oocyte के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं first polar body. एंड नाउ व्हाट हैपेंस? देखिए, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, फीमेल कंटिन्यूज द मेनार्की, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो गए। एंड मीनवाइल फीमेल आल्सो डेवलप द ग्राफिन फॉलिकल, द बिग फॉलिकल्स। मैंने कहा था एक ओवरी में अप्रोक्सीमेटली 500 डोमिनेटिंग फॉलिकल्स होते हैं। ईच ओवरी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 500 डोमिनेटिंग फॉलिकल्स एंड एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में उन्हीं में से कोई एक फॉलिकल क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। फाइन। सो व्हाट हैपेंस? The primary first meiosis will be completed only after the puberty and secondary oocyte and first polar body. First polar body पे साथ में क्या हुआ? इसके साथ अत्याचार हो गया। It was just degenerated. अब क्या बच गया हमारे पास? We have only secondary oocyte. अब secondary oocyte में क्या होगा? It will have another cell division that is the second meiosis. But ये कब होगा? इसके बारे में मैंने अभी बात किया। Second meiosis will only start, या ये start तो हो जाता है, सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में, बट ये रुक जाता है। सेकेंड मियोसिस की एक फेज आती है जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज पे जाके ये स्टॉप हो जाता है। और ये किसका वेट करता है? सेकेंड मियोसिस। इट हैज टू वेट ऑफ द मैजिक टच ऑफ द स्पर्म। जैसे स्पर्म का मैजिक टच होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस विल बी कंप्लीटेड एंड इट विल बिकम फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। इट विल बिकम दी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। और उसके साथ साथ क्या बन गया? सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी के साथ में क्या हुआ? एक और अत्याचार, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। इट वाज degenerated, it was expelled out from the ovum. That's it. So this is the entire story regarding the oogenesis. How many chromosomes are present in the female pronuclei? 23 chromosomes. From the 23, 22 chromosomes are the autosome. 22 chromosomes are the autosome, and one chromosome, that was the X chromosome, it is a sex-linked chromosome. That's it.